Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. Tell me if I'm audible to you. Let us wait for others to join. Good evening. Yes, let us start our marathon class today for the subject literary theory. First of all, a very good evening to one and all. I'm Dr. Neha, and today the live class is going to be one marathon class for the subject literary theory, especially directed for Haryana Public Service Commission's Subject Knowledge Test bound to happen on 17th of August. डर एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा है. लग रहा है कि सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को कंप्लीट कैसे किया जाएगा. Let us see if the voice is audible, everything is going fine and clear. I have myself kept the screen darker because the content will be shared in the PPT mode so to make it more readable. So now डर बहुत ज्यादा लग रहा है, एंजाइटी भी है कि किस तरीके से एग्जाम आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स कीजिए. आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेरीज day and night talking about this very topic, that is literary theory. It is baffling each one of you, but ऐसा नहीं होना चाहिए. It is one of the most easiest subject, one of the most easiest topics that you will study today. I will take into account in my discussion today, I will take into account 5 major theories जिसमें से आने के chances बहुत ज्यादा हैं. Because in one lecture it is not possible for us to complete each and every theory, but I have tried very best, my very best to be as descriptive as possible कि आज इस वीडियो का बेनिफिट आप लोग उठाएं और जितनी भी वैल्यू आप गेन करना चाहते हैं लिटरेरी थ्योरी को लेकर के उसे गेन कीजिए. See, let us start. So the very first topic of our discussion will be Marxism. हमारे HPSC के सिलेबस में और इवन अगर लिटरेरी थ्योरी इन जनरल की भी हम बात करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो बेस्ड होता है 10 मेजर लिटरेरी थ्योरीज पर. तो पहला क्वेश्चन ये है कि लिटरेरी थ्योरी क्यों होता है, लिटरेरी थ्योरी क्या होता है. Why I am saying all such things? Because in order to develop a connect, हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे and we will go up till there to talk about the most confusing and the most challenging terms of literary theory. First of all, when this trend of criticizing started, criticizing क्या होता है, एक राइटर होता है, एक ऑथर होता है, उसके वर्क को जो रिव्यू करता है वो क्रिटिक बनता है, वो इवैल्यूएट करता है, उसके पॉजिटिव्स बताता है, नेगेटिव्स बताता है. वेयर एज wait, let me change my screen. First of all, एक लिटरेरी क्रिटिक होता है जो कि उसको इवैल्यूएट करता है, उसके पॉजिटिव्स बताता है और negatives बताता है. I don't know why the camera is not working properly. Is it working properly? Let me know in the comment section that is my camera working properly.
yes, it is now working properly. So हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है उसमें होता है एक ऑथर, एक होता है एक रिव्यूअर. वन इज ऑथर एंड वन इज रिव्यूअर, जो उस वर्क को इवेल्युएट करता है, एनालाइज करता है, उसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बताता है, तो वो होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम्स टू ऐड, इट एम्स टू ऐड, literary criticism aims to add the positive and negatives of a particular work, and it aims to review the work that is or that has already been written. Whereas literary criticism एक genre को भी review कर सकता है, एक work को भी review कर सकता है. हमारे HPSC के syllabus में we have literary criticism section also, in which we have guidance on dramatic poison, Matthew Arnold's The Study of Poetry. We have Aristotle's The Master Work, The Poetics, जो कि यॉनरा बेस्ड है. लेकिन लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिफरेंस क्या होता है? क्रिटिसिज्म इवैल्यूएट एंड एनालाइज करता है, जो लिटरेरी थियरी होता है वो एक जर्नी होती है एक न्यू आइडिया को प्रपाउंड करने के लिए, एक न्यू डिस्कोर्स को लेकर के आने के लिए जो जर्नी होती है वो होती है लिटरेरी थियरी की. लिटरेरी थियरी में यहाँ पर मिक्सचर होता है लिटरेचर का, सोसाइटी का, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड. ईच एंड एवरी थिंग इज मिक्स्ड अप deliberately to come up with a new discourse to and when we apply all those rules and new ideas to the analysis of literature, that essentially becomes the application of literary theory. So literary theory हमारे syllabus में कौन-कौन से prescribed हैं? We have Marxism, we have post-structuralism, we have feminism, we have eco-criticism, queer theory and what not. हमारे जो जितनी भी literary theory आज तक majorly propound की गई हैं वो सब हमारे सिलेबस में दी गई है. पोस्ट कलोनियलिज्म भी. तो यहाँ पर आज हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज की बात करेंगे. लिटरेरी थियरी के साथ लिटरेरी थियरिस्ट की भी बात करेंगे और उनके की कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद मार्क्सिज्म. पहला डर जो स्टूडेंट्स को लिटरेरी थियरी में लगता है वो सबसे पहला डर लगता है मार्क्सिज्म का. व्हाई? बिकॉज मार्क्सिज्म अपने टाइटल से ही बहुत ज्यादा बैफल करने वाला लगता है स्टूडेंट्स को. टाइटल से ही बैफल करने वाला लगता है. बट टेल यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थियरी. कार्ल मार्क्स की जो लिटरेरी थियरी है, that theory basically has been propounded by literary theory gets its name from Karl Marx, from the literary work of Karl Marx. कार्ल मार्क्स के वर्क से ही कार्ल मार्क्स की जो थियरी है, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं, उसी से ही मार्क्सिज्म बना है. Marxism gets its name from the collective and collaborative works of Marx and Friedrich Engels. अब इनका वर्क क्या था? Communist Manifesto. They wanted to popularize the idea of common property. They wanted to propound communism so to end the alienation that is on the part of poor people. As we all know, our society is divided into majorly into two sections, rich and the poor. Rich are getting richer and poor are getting poorer, and because of that there has been a long gap between two. Obviously there is middle class in between, but where is alienation? Alienation, akelapan, it is on the part of poor people only. That is why they cannot enter the room of a CEO without feeling doubtful, without taking it as a dare कि वहां पर जाकर हमें बात करनी है, without channelizing their words
themselves first. ये क्या है? ये alienation ही है, and this alienation is on the part of poor people. कार्ल मार्क्स की जो थियरी है, जो कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर जो मार्क्सिज्म की थियरी बनाई है, वो थियरी किसने प्रोपाउंड की है? कार्ल मार्क्स के नेम पर है. सेकेंडली, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, रिच एंड पुअर. पुअर्स here are called as proletariat and rich people are called as bourgeoisie people. Alienation entirely is on the part of पुअर पीपल ओनली. वो एलियनेटेड है, रेइफिकेशन है. तो ये एक सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल हर पैरामीटर को देखती है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को देखती है. व्हाट कैटेगराइजेस योर पर्सनालिटी, व्हाट कैरेक्टराइज योर स्टैंड, व्हाट कैटेगराइजेस योर सोशल स्टेटस, सब कुछ डिराइव करता है आपकी पॉकेट में कितना मनी है, और इसे टेक अप करते हैं हमारे कार्ल मार्क्स. सो मार्क्सिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक लिटरेरी theory. So let us start with that. Read with me. Marxism, it gets its name from philosophical and economic ideologies of Karl Marx. Are you able to read it properly? Marxism reinforces the idea of base and superstructure. कार्ल मार्क्स reinforce करते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के आइडिया को, ऑफ क्लास एक्सट्रीमिटीज. क्योंकि रिच एंड पुअर की क्लास को हमने एक्सट्रीमिटीज बना ही दिया है. हम उन्हें एक्सट्रीमिटीज, हमने एक परफेक्ट बाइनरीज बना दिया है कि रिच और पुअर दो ही मेजर क्लासेस हैं. एंड द एलियनेशन ऑफ पुअर क्लास इन सोसाइटी. Marxism provides a lens through which literature is analyzed in relation to the historical, economic and class struggles of the time. Marxism literature में एक lens provide करता है कि हम कैसे literature को view कर सकते हैं in terms of Marxism. How there is the representation of capitalist society, there is a representation of utilitarianism. Utilitarianism is another extension of Karl Marx's theory only, where the bourgeoisie people, they are concrete, they are asking for facts. यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी चार्ल्स डिकिंस का हार्ड टाइम्स. मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यूटिलिटेरियन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी बन सकता है हमारे मार्क्सिज्म की थियरी का. बिकॉज मार्क्सिज्म तो एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल थियरी है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर हम लिटरेचर के लेंस से मार्क्सिज्म की थियरी की बात करते हैं, तो लिटरेचर का रिप्रेजेंटेशन कैसे वर्क्स ऑफ लिटरेचर जो हैं वो पोर्ट्रे करते हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को. कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल बनता है हार्ड टाइम्स. हार्ड टाइम्स जो हमारा नॉवल है, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकिंस, ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव वर्क है किस आइडियोलॉजी का? दिस इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ द यूटिलिटेरियन एंड मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड द रिलेशनशिप शेयर्ड बाय बुर्जुआजीज एंड प्रोलेटेरिएट. ग्रैंड गाइड हमारे बुर्जुआजी है, एक कैपिटलिस्ट है, एक यूटिलिटेरियन है. Whereas हमारे प्रोलेटेरिएट कौन है? सिसी ड्यूप है, वो वर्कर है. स्टीफन ब्लैकपूल है. स्टीफन ब्लैकपूल belongs to the proletariat class. He works in a factory and he works in that factory and gets punished out of nowhere. So the relationship that Mr. Grandgride had, the thought process that he had of facts and facts, of imbibing mere facts to his children. He gave them children facts but nothing. ये एक Marxist ideology भी है, because he has this money in his pocket, and because of that money, what he is doing, he is basically ruining the life of the children by imbibing merely फैक्ट्स. सो मार्क्सिस्ट थियरी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी थियरिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे जॉर्ज लुकाश एक हंगेरियन फिलोसोफर है. उसके साथ हमारे पास है एंटोनियो ग्राम्स्की, लुई अल्थ्यूजर, फ्रेडरिक जेम्सन एंड टेरी ईगल्टन. यहाँ पर आई हैव tried my best to be as descriptive and as positive as possible, so that is why I am taking into account the most important aspect of a theory and the most important literary
थियरिस्ट। तो लिटरेरी थियरी आप समझ गए, कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से नाम दिया गया है मार्क्सिज्म। रिच और पुअर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। लिटरेचर की तरह लिटरेचर को एक लेंस प्रोवाइड करती है देखने के लिए कि एक वर्क कितना रिप्रेजेंटेटिव वर्क है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का, किस तरीके की क्लास कॉन्शियसनेस प्रोपाउंड की गई है, क्या रिच को रिच दिखाया गया है, पुअर को पुअर दिखाया गया है, और क्या प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर प्रमोशन किस चीज का है, क्या वो क्लास कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहा है या इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। क्लास को लेकर कॉन्शियस होने का मीनिंग तो ये है यू आर कॉन्शियस अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड, योर स्टेट ऑफ योर स्टेटस, एंड यू आर पुअर एंड यू विल स्टे पुअर, दैट ओनली। तो लेयर इन मार्क्सिज्म, इन द केस ऑफ मार्क्सिज्म, लिटरेचर बिकम्स अ literature is a superstructure. It is not a base. I tell you, media in itself is a superstructure, because the one who is writing the kind of literature he or she will write will definitely be influenced by the status of life he or she is leading. तो यहाँ पर लिटरेचर जो होता है वो हमारा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। ये टेरी ईगल्टन ने भी एम्फेसाइज किया है। जो हमारे मार्क्स का कॉन्सेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का, वो टेरी ईगल्टन ने भी रिप्रेजेंट किया है अपने वर्क में। लेकिन मेन जो हमारे लिटरेरी थियरिस्ट हैं वो हैं हमारे जॉर्ज लुकास, एंटोनियो ग्राम्स्की एंड लुई एल्थ्यूजर। अब यहाँ पर मैं एक इनके मेन की कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज कार्ल मार्क्स की थियरी जो है वो सबसे ज्यादा हमें रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलती है जॉर्ज लुकास के वर्क्स में। लुकास जो है, जॉर्ज लुकास का जो वर्क है व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, क्या करता है, कंप्लीटली बताता है कि कार्ल मार्क्स की लिटरेरी थ्योरी क्या है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, प्रोपाउंडिंग आइडियाज क्या है, उनके डिस्कोर्सेस क्या है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में वो बुर्जुआजीज के बारे में बताते हैं, प्रोलेटेरियट, उनका एक ऐसे है, प्रोलेटेरियट्स के बारे में बताते हैं, बुर्जुआजी के बारे में बताते हैं, और उसके साथ साथ कार्ल मार्क्स का जो फेमस डायलेक्टिक मॉडल है, मैं वो कार्ल मार्क्स का जो मॉडल है मैं आपको समझा देती हूँ। डायलेक्टिक, जो टर्म्स आज के लेक्चर में मैं मेंशन कर रही हूँ, दीज टर्म्स कैन बी मेंशन्ड इन योर आंसर, इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज दीज आर द मेन की नोशंस ऑफ अ लिटरेरी थियरी। तो बुर्जुआजी वर्ड यूज कीजिए, प्रोलेटेरिएट वर्ड यूज कीजिए, डायलेक्टिक मॉडल जो कि रीयूज किया गया है जॉर्ज लुकास के द्वारा, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एक डायलेक्टिक मॉडल दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिसमें वो क्या कहते थे, एक आइडिया है, आइडिया क्या है कि पुअर तो पुअर ही रहेंगे, ये एक प्रेजेंट थीसिस है, इस आइडिया को आप एंटी थीसिस कीजिए, और एंटीथेसिस करने के बाद आप इसको सिंथेसिस कर दीजिए। सिंथेसिस करने का क्या मीनिंग है, यू रेगुलेट दैट आइडिया, यू अप्लाई दैट आइडिया टू द सोसाइटी। सो थीसिस, एंटाइथीसिस एंड सिंथेसिस। जॉर्जी लुकास कहते हैं भाई साहब ये एक रेवोल्यूशनरी मॉडल है। ये डायलेक्टिक मॉडल क्या है, हमने क्या कहा कि जो यूटिलिटेरियनिज्म की, जो हमारी यूटिलिटी की फिलॉसफी होती है, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी होती है कि पुअर के साथ हमेशा गलत होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, एलियनेशन होगा, क्यों ना इस आइडिया को एंटाइथीसिस कर देखो, क्लास के लिए कॉन्शियस होकर देखो, क्लास सिस्टम को एंड करके देखो, कम्युनिज्म लगाकर देखो, तो सिंथेसिस करो कम्युनिज्म का। सो मार्क्सिज्म की थियरी को जॉर्ज लुकास कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ डायलेक्टिक मॉडल है वो एक रेवोल्यूशनरी डायलेक्टिक मॉडल है, और वो मार्क्सिज्म को लॉन्ग लॉस्ट रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, और क्या कहते हैं कि लिटरेचर में मैं प्रेफर करता हूँ रियलिज्म को। आप लिटरेचर में आप हर नुक एंड कॉर्नर से रियलिटी को ही पोर्ट्रे करें। तो जो जॉर्ज लुकास है वो एक ट्रू ब्लू मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, एक हंगेरियन क्रिटिक है, जिनका फेमस ऐसे है व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, एमडीयू के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। सो वो इसे कहते हैं मटेरियलिस्ट डायलेक्टिक मॉडल।
बिकॉज आपकी पॉकेट में जितनी मनी है उसी का ही आप थीसिस करोगे, एंटाई थीसिस करोगे, उसी का ही सिंथेसिस करोगे। तो मटेरियल डायलेक्टिक मॉडल इज अ रेवोल्यूशनरी मॉडल। मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ। लेट अस ब्रेक डाउन व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। हमने मार्क्सिज्म पढ़ा, कहाँ से आया? कार्ल मार्क्स से आया। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स के कॉमन व कोलैबोरेटिव वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आया। एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद ये वर्क हमारा आया है। जॉर्ज लुकास जो है वो हमारे फेमस लिटरेरी थियरिस्ट हैं, जिन्होंने इस लिटरेरी थियरी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। सो एक बार रीड कर लेते हैं द नेक्स्ट पेज। George Lukács. He used Marxist ideas to study how literature reflects society, most reputed for the realism that he sought for in literature of the times, class consciousness in his book History and Class Consciousness 1923, concept of dialectic and thesis, antithesis, synthesis in what is orthodox Marxism. एंटोनियो ग्राम्स्की, भाई एंटोनियो ग्राम्स्की और हमारे लुई अल्थ्यूजर, सुन लीजिए। अब इन थ्री क्रिटिक्स को जरूर से जरूर मेंशन करा जब भी बात मार्क्सिज्म की करोगे। जब मार्क्सिज्म की बात करोगे तो जॉर्जी लुकास, लुई अल्थ्यूजर एंड एंटोनियो ग्राम्स्की के बिना आप डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी। तो एंटोनियो ग्राम्स्की का फेमस एक ही की टर्म है, दैट इज हेजेमनी। हेजेमनी क्या है? हेजेमनी इज डोमिनेंस। लिटरेचर के केस में हेजेमनी क्या है? whenever we talk about whenever we talk about Renaissance, don't we talk about Shakespeare? Aren't we giving him a hegemonic status? रेनेसा में तो और भी बहुत कुछ है। रेनेसा में तो बेन जॉनसन भी हैं, रेनेसा में तो और सोनेटियर्स भी हैं, छोटे सोनेटियर्स भी हैं, माइकल ड्रेटन जैसे। तो व्हाई वी आर गिविंग हिम अ ग्रैंड टाइटल? व्हाई वी डिफाइन लिटरेचर बाय द टर्म ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर ने खुद ही कह दिया है अपने मीम्स में कि सब कुछ मैंने नहीं बोला है। तो देयर इज अ नीड टू ब्रेक डाउन दोज ग्रैंड नैरेटिव आइडिया एंड टू ब्रेक दैट हेजेमोनिक स्टेटस that we associate with few things. We associate hegemonic status with rich people, bourgeoisie people. We follow their culture. We will definitely follow the flower dupatta, the jal dupatta वॉर बाय राधिका अंबानी इन हर हल्दी फंक्शन। तो वो क्या है? वो हेजेमोनिक आइडिया है। उस हेजेमोनिक आइडिया को जब हम इम्बाइब करते हैं, उसको हेजेमनी का स्टेटस देते हैं बाय कॉपिंग एंड री कॉपिंग एंड कॉपिंग अगेन, हम क्या करते हैं? वी गिव इट अ हेजेमोनिक टाइटल, वी बिलीव दैट दिस इज इट। तो यही हेजेमनी है, यही अपर क्लास है। तो यहाँ पर जो एंटोनियो ग्राम्स्की का आइडिया हेजेमोनी का, ये कल्चरल स्टडीज पर भी उतना ही अप्लाई होता है, क्योंकि किसी कल्चर को हम हेजेमोनिक मानते हैं, किसी कल्चर को हम डोमिनेंट रेसिडुअल मानते हैं। तो जो कल्चरल स्टडीज का मेन बेस है वो हमारा यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, हेजेमनी से। हमारे थर्ड लिटरेरी थियरिस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो फार मैंने कहा कि आप इन 2-3 थियरिस्ट का जरूर से जरूर मेंशन करना अगर मार्क्सिज्म की थियरी आती है। तो हमारे हो गए पहले लुकास, फिर हो गए हमारे ग्राम्स्की, और फिर हो गए हमारे एल्थ्यूजर, सॉरी अब हो गए हमारे लुई एल्थ्यूजर। लुई एल्थ्यूजर का वर्क कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लुई एल्थ्यूजर का जब मैं बात करती हूँ एज अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक, तो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएसए एंड आरएसए का। आईएसए स्टैंड्स फॉर आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस एंड आरएसए स्टैंड्स फॉर रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। देखिए, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो हमारी आइडियोलॉजी को हमारे वेल बीइंग को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि आप मानते हैं हॉस्पिटल में जाना, क्या वो एक कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है? अगर आपको जरा सा भी कुछ हुआ है, यू विल गो रनिंग टू द हॉस्पिटल। जाओ, बिल्कुल जाओ, ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो हमारी आइडियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है, yes or no? Yes, it is controlling our ideology. So ISA and RSA are repress कर रहे हैं हमारी आइडियोलॉजी को। हमारे को पता है कि
For example, let me give you a very, very good and easy example. There is वन स्टोर बहुत अच्छा बना हुआ है, मॉल कल्चर दिखा रहे हैं, सारी चीजें डिस्प्ले पर हैं, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को इंक्लूड कर रखा है, और वही एक छोटी सी शॉप है। तो आपका आईएस से क्या है, वो मॉल कल्चर जो एक मॉल दिखा रहा है, जहां पर सारे के सारे ब्रांड्स आपके आंखों के आगे हैं। यू एंटर दैट बिल्डिंग एंड ईच एंड एवरी ब्रांड इज इन फ्रंट ऑफ यू। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और साथ के साथ आपको रिप्रेस कर रहा है। रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिस हो सकता है जैसे प्रिजन, क्योंकि वो आपको रिप्रेस करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी को कंट्रोल करता है मॉल कल्चर, लेकिन रिप्रेसिव स्टेट एप्रोचेस हो सकते हैं, प्रिजन हो सकता है, मैडनेस का मेंटल हॉस्पिटल हो सकता है। तो क्योंकि वो आपको रिप्रेस करते हैं बाय कंट्रोलिंग योर पावर। Am I audible to you entirely? People, do let me know in the comment section. Is the lecture going fine? Anybody please tell. Okay, Pratiksha, thank you so much. Thank you so much, all of you, for being so ardent listeners and ardent commenters. Thank you so much, Pratiksha, Akanksha, Suman, Manisha, Ritu. Thank you so much for being there. सुनते रहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज के टाइम पर हम 5 लिटरेरी थियरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। सो इन 3 लिटरेरी थियरीज को तो जरूर करके जाना। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम हम इनकी बुक्स भी पढ़कर जाएं। नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आप अगर बुक्स का नेम लर्न कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर आपका वर्क करेगी आइडियोलॉजी, आपके टर्म्स। आप की टर्म जरूर से जरूर पढ़ करके जाइएगा। की टर्म लुकास की, ग्राम्स्की की, एंड एल्थ्यूसर की। उसके साथ साथ टेरी ईगल्टन पढ़ लेना, उनका बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ द लिटरेरी थियरी मार्क्सिज्म। अपनी हम नेक्स्ट लिटरेरी थियरी स्टार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट लिटरेरी थियरी इज गोइंग टू बी post-structuralism and deconstruction, one of my most favorite literary theories. Wait, let me have some water. See, post-structuralism and deconstruction, first of all, होता क्या है? Post-structuralism is basically post-structure. Structuralism, without alluding to what is structuralism, we cannot understand post-structuralism. And without post-structuralism, we cannot understand what is deconstruction. So post-structuralism here is the age, the theory after structuralism. What is, in order to know what is post-structuralism, you need to know what is structuralism. Structuralism, as the title of it suggests, is known for the structures. जो एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक लिटरेचर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक वर्क के, वो फॉर्म हो सकता है, टोन हो सकता है, थीम हो सकता है, और उसके साथ जो इनहेरेंट थीमेटिक स्ट्रक्चर है वो हो सकता है। वो हमारा चॉइस ऑफ लैंग्वेज हो सकती है, वोकैबुलरी हो सकती है। व्हेन यू ब्रेक अ वर्क ऑफ लिटरेचर इनटू स्ट्रक्चर्स, दैट इज structuralist approach. That is a structuralist formalist approach. When you talk about, when you look for the form in any work, it is formal, it is formalism or structuralism. Each and everything is in that paper only. There is nothing outside the text. आपने एक पोम को उठाया, एमिली डिकिंसन की पोम को उठाया, success is counted sweetest by those who have never tasted it. जिन लोगों ने सक्सेस को कभी टेस्ट नहीं किया है, उनके लिए सक्सेस हमेशा स्वीट ही रहती है। तो एमिली डिकिंसन की ये जो पोम है, आप उसकी टोन को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे, राइमिंग स्कीम को पढ़ेंगे, उसके स्टैंजा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच हो गई। वेयर एज
पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच क्या होती है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इज व्हेन यू गो बियॉन्ड दोस स्ट्रक्चर्स, व्हेन यू नो दैट एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट एंड येट इट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में सब कुछ है भी और टेक्स्ट में सब कुछ नहीं भी है। यू कंप्लीटली वेट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज बेसिकली फॉर्म। हमारा स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? आप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कि इन 5 स्ट्रक्चर्स के बिना के अलावा देयर इज नथिंग इन द टेक्स्ट। बट जब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, यू फील यू डिसेंटर एवरीथिंग। देयर इज ए नेसेसरी डिसेंटरिंग। स्ट्रक्चर एक वर्क को सेंटर देता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उस चीज को डिसेंटर कर देता है। दैट मीन्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डीकंस्ट्रक्शन करता है, डीकंस्ट्रक्टिव होता है। वो कंस्ट्रक्शन जो आपने बनाई थी उसे डीकंस्ट्रक्ट करता है और क्या कहता है कि फिक्सिटी को, गुड आइडिया, फिक्सिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर आपने एक फिक्स्ड लैंग्वेज को फॉलो किया है, लेकिन हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फ्लूइडिटी को फेवर करता है, मिक्स्ड आइडियाज को, मिक्स्ड वॉइसेस को। आप जब स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी करते हैं तो आप मानते हैं एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटेगनिस्ट है, वेयर एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मानता है कि प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट होने के साथ साथ देयर आर मल्टीपल अदर वॉइसेस इन द टेक्स्ट। द ऑथर इज डेड, रिटन बाय रोला बार्ट्स। रोला बार्ट्स का ऐसे ही टर्न दिखाता है फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। He not only recognizes the role of the text, but he not only recognizes the role of the author, but recognizes the role of the reader also. He thinks once a writer has written a text, there is a Joshua like feeling, there is a proximity closer to death. This is उनका जो मेन की टर्म है। He thinks that there is a feeling near to death. John Shaw, there is a feeling near to death, and death is on the part of the author. The author is dead because the death of the author marks the birth of the reader. यहाँ पर रीडर का बर्थ होता है ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया। स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया क्या कहता है? आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट को, रैशनल है, लॉजिकल है, पॉलिटिकल है, रीजनल है। whereas पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया उन सब इनहेरेंट वॉइसेस को भी टेक इनटू नोट करता है, डेफिनेटली करता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं whatsoever I have written about post structuralism. Meaning is constructed through language. लैंग्वेज इनहेरेंटली अनस्टेबल है। टॉप मेरे लिए पहनने वाला टॉप हो सकता है, सामने वाले के लिए रिवॉल्विंग टॉप हो सकता है। So meaning is constructed through language, and since language is inherently unstable, meaning is always shifting. तो एक fixed meaning ही नहीं है तो भाई साहब आप fixed structure कैसे दे सकते हैं? While in structuralism there are centers, static structures that are identifiable, whereas post-structuralism focuses on decentering. This is how we make our notes. This is how we provide our notes. हमारे जो लिटरेरी थियोरी के नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ दे आर वेल written. Each and every literary theory and each and every major concept has been covered. अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमारे पेड नोट्स फॉर लिटरेरी थियोरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम 4 डेज तो रह गए हैं, हम कैसे कवर करेंगे? कर सकते हो, व्हाई नॉट। आपको मैंने पढ़ा दिया है कि कौन सी थियोरी में क्या है, छोड़ करके नहीं जाना है। कौन सी थियोरी में बेसिकली क्या प्रोपाउंडिंग आइडिया है, आप उस आइडिया से अब मेरे नोट्स को रीच कीजिए,
पढ़िए, डेफिनेटली ईच एंड एवरी मार्कर हैज बीन टच्ड अपॉन। अब वहां पर नोट्स कॉम्पैक्ट हैं, वो नेट के लिए नहीं बना, नेट के लिए भी बनाए गए हैं, लेकिन मेन उनका फोकस है HPSC सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, बिकॉज उसमें हमें 250 to 300 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज लिटरेरी थियरी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो बहुत बैफल करता है बच्चों को। बट इट इज वेरी इजी। अब नोट्स बनाने तो बैठोगे नहीं, तो रेडीमेड नोट्स आर अवेलेबल एंड दे आर ओरिजिनल, दे आर वेल मेड, वेल स्ट्रक्चर्ड। आप उनमें से ही अपना आंसर डिराइव कर सकते हो, क्योंकि लिटरेरी थियरी दी गई है, तो लिटरेरी थियरी का एक ओवरव्यू भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो हम मेजर लिटरेरी थियरीज के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, थियरी के बैकग्राउंड को भी कवर करते हैं अपने नोट्स में। बहुत कॉम्पैक्ट है, आप वन रीडिंग में 2 to 3 लिटरेरी थियरीज रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट इट विल गिव यू वेरी मच बेनिफिट, बिकॉज लिटरेरी थियरी छोड़कर मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाइल इन स्ट्रक्चरलिज्म, यहाँ पर डिसेंटरिंग हो जाती है। द वर्क्स, अब किसके वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में? जेक्स देरिडा के, जिन्होंने 1960s में अपने वर्क्स ऑफ ग्रामेटोलॉजी, स्पीच एंड फेनोमेना, राइटिंग एंड डिफरेंस, देरिडा ने क्वेश्चन किया है सेंटर को, यूनिटी को, और उसके साथ साथ बाइनरी ऑपोजिट्स को। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगर एक स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया में कलर्स को देती हूं तो क्या होगा? ब्लैक और व्हाइट। सिचुएशन, दो ही तरीके की बाइनरी ऑपोजिट्स होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इस बाइनरी नोशन को ब्रेक करता है और लेकर के आता है एक एम्बिवेलेंट नोशन ऑफ ग्रे। यहाँ पर सेंटर्स की ही डीसेंटरिंग की जाती है, एम्बिवेलेंट आइडियाज होते हैं। यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में साथ साथ हमें मिल जाता है हमारी जो यूनिफाइड आइडिया होता है, उसको हम फ्लक्स पर लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ही सेम आइडियाज हमें पोस्ट मॉडर्निज्म में भी देखने को मिलते हैं। अब हमारे मेन लिटरेरी थियरिस्ट कौन है? जेक्स देरिडा हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, किस चीज को क्वेश्चन किया है? डिफरेंस का उनका कॉन्सेप्ट है। और उसके साथ साथ मेजर लिटरेरी थियरिस्ट जेक्स देरिडा, उनका मेन वर्क जो है वो उनके जो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया है वो क्या है? डिफरेंस का है। और उन्होंने इवन सोश्योर के स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया ऑफ साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को भी क्वेश्चन किया है। और क्या कहा है कि एक सिग्निफायर कभी एंड सिग्निफाइड तक पहुंचता ही नहीं है। वन सिग्निफायर लीड्स टू अदर सिग्निफायर, whereas other signifier leads to yet another signifier. मैंने कहा टॉप, I mean this top, you mean revolving top, the other person who is listening to means a mountain top, अदर मानेगा रीचिंग ऑन टॉप, आई लिव ऑन टॉप। तो ये सब जो सिग्निफाई में साइन दे रही हूं आपको, तो जो चीजें सिग्निफाई हो रही हैं वो मल्टीपल हैं। यहाँ पर मीनिंग पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया स्ट्रक्चर, इनहेरेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, डीसेंटर करता है, लैंग्वेज को फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल बनाता है, एक वर्क में मल्टीपल वॉइसेस को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें हेट्रोग्लॉसिया भी आ जाता है, हमारा पेनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इनका जहां पर डेविड लॉज एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने कहा इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डीकंस्ट्रक्शन? अरे डीकंस्ट्रक्शन के बाद क्या सच में कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो दिस इज द डेड एंड वेयर वी वर बाउंड टू रीच। हमारे अनदर इंपॉर्टेंट राइटर है रोला बार्ट्स। रोला बार्ट्स का जो मेन प्रोपाउंडिंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क है वो है द डेथ ऑफ द ऑथर, बर्थ ऑफ द रीडर, जॉनशुआ फीलिंग। राइटरली रीडरली टेक्स्ट भी उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दीज टू, इन टू के अलावा अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मैम लिटरेरी थ्योरी पर अगर क्वेश्चन आ गया तो हम अटेम्प्ट कैसे करें? सपोज आंसर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे आता है तो डिवोट वन डे इन वन पेज इन इंट्रोड्यूसिंग द थ्योरी। मेजर मार्कर्स अपने माइंड में रखिएगा, जैसे कि हमने मार्क्सिज्म का आपका क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको पता है
कार्ल मार्क्स का आएगा, एंजल्स का आएगा, बुर्जुआजी का आएगा, प्रोलेटेरिएट का आएगा, डायलेक्टिक मॉडल का आएगा। तो ये आप मार्कर्स बना करके चलेंगे तो बाय द एंड आप 1 पेज फिल कर पाएंगे। हार्ड टाइम्स का एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे। फ्रेगमेंटेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मिसेस डेलोवे भी अगर देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ का, उन्होंने पार्टी देनी है लेकिन बैक इन माइंड वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है। अब उसमें से आप क्या स्ट्रक्चर निकाल देंगे? कोई भी स्ट्रक्चर नहीं निकलता है। क्या वेस्टलैंड एक स्ट्रक्चरलिस्ट पोएम है? नो, वेस्टलैंड इज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पोम। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, अगर किसी भी थियोरी पर क्वेश्चन आता है तो डिवोट एटलीस्ट टू 1 standing page इन डिस्क्राइबिंग विद एग्जांपल्स द लिटरेरी थियोरी, एंड मेजर थियोरिस्ट को जरूर से जरूर मिनिमम 2 लिटरेरी थियोरिस्ट को इंक्लूड करना ही करना है। अब यहाँ पर और राइटर्स भी हैं, पॉल डे मैन, जॉफ्री हार्टमैन, हिल्स मिलर, हैरोल्ड ब्लूम, ये अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक भी एक इंपॉर्टेंट राइटर है। नाउ नेक्स्ट come to another very important literary theory, that is post structuralism. I hope अब तक सारा कुछ क्लियर है। Is it clear till now? चलिए, नाउ लेट अस कम टू पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म को भी जी हम बिना मॉडर्निज्म समझाए नहीं बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इन लिटरेरी थ्योरीज की इंडिविजुअल वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप जाकर के व्यू कर सकते हैं। मैं इन्हें टैग भी कर दूंगी साथ में, बट इंडिविजुअल भी 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस अवेलेबल है ऑन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर लिटरेरी थ्योरी। पोस्ट मॉडर्निज्म है, डीकंस्ट्रक्शन की थियरी है, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म है, तो आप उसमें से अच्छा मटेरियल में अच्छे वर्ड्स डिराइव कर सकते हैं और इसको और डिस्क्रिप्शन के साथ समझ सकते हैं। सो लेट मी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म गेट्स इट्स नेम फ्रॉम मॉडर्निज्म ओनली। मॉडर्निज्म में से ही वो अपना नेम जो है वो लेता है, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म क्या होता है? व्हेन यू लुक फॉर न्यू थिंग्स, व्हेन यू लुक फॉर न्यू आइडियाज, व्हेन यू लुक फॉर न्यू subjective thing, when you know that each and everything has to be new and completely departed from what was traditional, completely departed from what has long gone by, that is modernism. The focus on make it new, make it new, ये था हमारा मॉडर्निज्म का। अब मॉडर्निज्म में जी साथ फ्रेगमेंटेशन भी थी, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन को यूज किया जाता था, फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्निज्म। सो मॉडर्निज्म का फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी को लेमेंट किया जाता था, लेमेंट दिखाने के लिए फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी। वेस्टलैंड, मिसेस डैलोवे, हमारा जो वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, वेस्टलैंड से बड़ा फ्रेगमेंटेड वर्क कौन सा हो सकता है? सो द वेस्टलैंड में भी फ्रेगमेंटेशन को लेमेंट किया गया है। मिसेस डेलोवे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड में सब कुछ चल रहा है। सैमुअल बेकेट का प्ले वेटिंग फॉर गॉडो। तो ये सब जो वर्क्स हैं, ये तो हमारा पोस्ट मॉडर्न वर्क हो गया वैसे, लेकिन जो हमारा वेस्टलैंड है 1920 का वर्क है, तो फ्रेगमेंटेशन को लेमेंट करता है, मेक इट न्यू चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, कुछ भी पुराने जैसा ना हो, सब कुछ नया हो। तो उसका फोकस होता है, किसका फोकस होता है? मॉडर्निज्म का फोकस होता है। वेयर एज पोस्ट मॉडर्निज्म इसका अदर वे राउंड होता है। यहाँ की पोस्ट मॉडर्न की बेसिक लिटरेरी टर्म्स हैं पेस्टीज, पेस्टीज, वेयर
कोलाज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज अलाउड। पोस्ट मॉडर्निज्म में कुछ नया ना भी हो, अगर ट्रेडिशन भी है, हाउ इन अ बेटर वे यू आर कैरिंग अप विद योर एंसेस्टर्स, वो भी एक नई बात है। रिसर्च का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में एक पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वाई? यहाँ पर सर्च ऑफ नॉलेज भी तो हो सकता है, बट रिसर्च ऑफ नॉलेज, you have to pay respect to the earlier found knowledge in order to give contribution to the knowledge that you are going to give. You are going to do the research. So postmodernism में आइडिया में नया ना हो लेकिन ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करता हो। पोस्ट मॉडर्न आइडिया में prestige is allowed, collage of traditional works, collage of all the many voices, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के साथ जितनी भी वॉइसेस हैं, ऑल दोज वॉइसेस आर इम्पोर्टेंट। तो वो पेस्टीज ऑफ आइडियाज है। रेनेसा में सिर्फ मानते हो शेक्सपियर है, शेक्सपियर को एक ग्रैंड नैरेटिव मानते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो। जब भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स की बात आती है तो वो समझते हैं कि हम शेक्सपियर के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो लॉस ऑफ ग्रैंड नैरेटिव होना चाहिए जी। माइकल ड्रेटन के आइडिया सोनेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने स्पेंसर के इंपॉर्टेंट है एमोरेटी, जितना सिडनी का इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सो देयर हैज टू बी अ लॉस ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स इन द पोस्ट मॉडर्न, whereas in modern age grand narratives are placed on a grand pedestal. You just have to reach up to them. You have to reach that stature of life. You have to make it new. The postmodern idea is the idea that is propounded after 1950s. लेकिन इससे पहले अगर हम चलते हैं तो वर्ल्ड वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। तो फ्रेगमेंटेशन लेमेंटेशन का रिलेशन हमें समझ में आता है, बिकॉज लंदन ब्रिजेस falling down, chapels are empty, river Thames is loaded with sandwich papers and dust। तो फ्रेगमेंटेशन को लेमेंट किया, फ्रेगमेंटेशन को एज अ टेक्निक ऑफ लिटरेचर लेमेंट किया जाता था, लेमेंट की तरह यूज किया जाता था, मेक इट न्यू था, अवंट गार्ड मोमेंट था। वेयर एज पोस्ट मॉडर्न आइडिया ऑफ थॉट क्या था? पेस्टीज था, लॉस ऑफ ग्रैंड आइडियाज था, फ्लूइडिटी अवेलेबल थी, टेम्पोरल भी था, परमानेंट भी था। चीजों को स्टेबलाइज नहीं किया जाता था, चीजों को फ्लक्स में, ऑलवेज थिंग्स, लैंग्वेज, मीनिंग, थीम्स, प्लॉट, ईच एंड एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। समझ पा रहे हो? अच्छी रिवीजन हो रही है? प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू रिवाइज इट इन अ मच बेटर वे नाउ? Are you able to get all the points that I'm talking about? Please comment. Thank you so much. So postmodern idea is basically an idea where there is loss of grand narratives, there is hybridity, along with hybridity there is, see, it's a philosophical and theoretical position that privileges the local over universal। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, ग्लोकल का। ग्लोकल मीन्स ग्लोबल एंड लोकल। आप ग्रैंड नैरेटिव के साथ लोकल नैरेटिव को भी पढ़ रहे हो, तो दैट इज द ग्लोकल। तो अब आप जब पोस्ट मॉडर्निज्म के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये टर्म आई है जी, चार्ल्स जेंक्स ने ये टर्म दी है। प्लीज माइंड द स्पेलिंग, प्लीज डोंट माइंड इट। चार्ल्स जेंक्स इन द ईयर 1947। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर में आया कैसे, समझने के लिए किन के वर्क्स को, सैमुअल बेकेट के वर्क्स, जो एब्सर्ड थिएटर, वेटिंग फॉर गॉडो जैसे वर्क्स की पोजीशन को समझने के लिए पोस्ट
मॉडर्निज्म आया है. दे आर एसेंशियली द पोस्ट मॉडर्न वर्क. मॉडर्निज्म में सरियलिज्म, दादाइज्म, इमेजिज्म, मॉडर्निज्म इटसेल्फ था. वेयर एज अगर पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, किचन सिंक ड्रामा, एब्सर्ड थिएटर, ये सारी लिटरेरी थियरीज है. किसकी है? ये है पोस्ट मॉडर्न की. यूपी का एलटी ग्रेड एग्जाम आने वाला है इन दी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली. उन्होंने बहुत अच्छे की टर्म्स को उठाया है. स्टोरी को डिफाइन कीजिए, प्लॉट को डिफाइन कीजिए, राइम को, रिदम को, मीटर को. तो उस पर भी हमारी वीडियोस अब जल्दी ही अपलोड होने वाली है. हम जल्दी ही एक और एग्जाम को टैकल करने वाले हैं, यूपी का एलटी ग्रेड एग्जाम, जो कि यूपीपीएससी की तरफ से हो रहा है. तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा. अपने व्यूअर्स को कह रही हूँ जो यूपी से बिलोंग करते हैं या कहीं, क्योंकि इट्स एन ऑल इंडिया एग्जाम, तो एलटी ग्रेड एग्जाम का सिलेबस भी हम अप्रोच करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव से भी एंड सब्जेक्टिव से भी. और साथ साथ नेट का सिलेबस तो चल ही रहा है. सो प्लीज शेयर दिस चैनल because we are going to start our preparation for UPLT grade just after this exam gets over, because I have to maintain loyalty to my HPSC candidates. They rely on me, they trust my thought. That is why that motivates me to wake up every day, study like a child, study like a candidate myself, and prepare these sort of presentation and such important कंटेंट फॉर यू कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ आप इसका पेड पीडीएफ भी ले सकते हैं सब लिटरेरी थियरीज का हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर. तो पोस्ट मॉडर्निज्म, मेक इट न्यू, फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपके आंसर में दिखनी चाहिए. अब पोस्ट मॉडर्निज्म के मेजर लिटरेरी थियरिस्ट कौन है? मेजर लिटरेरी टर्म्स जो हो गए हमारी पेस्टीज, इंटरटेक्चुअलिटी, लॉस ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स एंड फ्रेगमेंटेशन. दीज आर द मेजर लिटरेरी टर्म्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. वेयर एज हमारे जो फेमस थियरिस्ट हैं वो है जीन फ्रांसियोस लियोटार्ड एंड जैक्स डेरिडा. डेरिडा एक डीकंस्ट्रक्टिव राइटर हैं, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर हैं, और उसके साथ साथ वो एक हमारे पोस्ट मॉडर्न राइटर भी हैं. अब लियोटार्ड का वर्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज he talks about the postmodern condition in his essay. His very important essay is his defining, answering the question what is postmodernism. MDU में prescribed है answering the question what is postmodernism. आपको पोस्ट मॉडर्निज्म समझना है तो जीन फ्रांसियोस लियोटार्ड के डिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं बता सकते हैं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडिंग लिटरेरी थियरिस्ट, और उसके साथ साथ जैक्स डेरिडा भी आ जाते हैं इसमें. तो पोस्ट मॉडर्निज्म पे हमारे जो है फ्रेडरिक जेम्सन भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं. तो आई थिंक I am done with postmodernism also. Now let us come to another very important literary theory, that is psychoanalytic criticism. भाई psychoanalytic criticism समझाने के लिए मैं बात करना चाहूंगी टू कॉन्सेप्ट्स की. देखिए, psychoanalytic criticism is basically the criticism and theory of the psyche. साइके की, हमारे माइंड की, हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की, हमारी एड की, ईगो की जो थ्योरी होती है वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का पार्ट होती है. साइकेट्री प्रैक्टिस होती है, थियरी आइडियाज होते हैं, हमारा ड्रीम वर्क, सब्लिमेशन, रिप्रेशन, ये सब कुछ कैसे हमें हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को समझने में, उसे हम साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं. लेकिन लिटरेचर में इसका क्या रोल है? इसका रोल लिटरेचर में ये है दैट इन अ वर्क ऑफ आर्ट, साइको एनालिटिक क्रिटिक्स क्या कहते हैं, एक वर्क ऑफ आर्ट में देयर आर two types of meanings, explicit meaning and latent meaning. Suppose कीजिए एक work of art है, अब यहां पर shall I compare, shall, अब जो शेक्सपियर की सोनेट है, compare the to a summer's day,
अब आप कहोगे कि नेहा मैम आपने इनको डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा, क्योंकि ये एक छोटा वर्क है, ये एक माइनर वर्क है, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। जो स्टैंडर्ड एचपीएससी में मेंटेन रखना है वो यहाँ बोर्ड पर भी मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट मिस्टेक ना करे। अब विलियम शेक्सपियर का ये जो वर्क है ये आप जानते हैं, शेक्सपियर ने कितने सॉनेट्स लिखे हैं? शेक्सपियर हैज रिटन 154 सॉनेट्स, जिसमें से कुछ सॉनेट्स किसे डेडिकेट किए गए हैं? एक लेडी को डेडिकेट किए गए हैं और एक यंग लेडी को, और कुछ सॉनेट्स डेडिकेट किए गए हैं एक एनोनिमस मैन को, जो कौन है, जो जिनकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर शेक्सपियर को जब देखा गया कि इन्होंने इन टू पीपल को अपने 154 सॉनेट्स डेडिकेट कर रखे हैं, कुछ डिविडेंड भी है इसका, आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ। सो शेक्सपियर के सॉनेट्स में जो एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या है? एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या है? क्या मैं आपको समर डे से कंपेयर करूं? आर यू फ्रेश लाइक समर? यू आर सो फ्रेश लाइक समर, देयर आर बर्ड्स दैट आर ग्रोइंग अप, इट इज वेरी फ्रूटफुल टाइम, वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्रेश एंड ब्राइट टाइम। लेकिन ये हो गया इसका एक्सप्लिसिट मीनिंग। अब एक मीनिंग मैं यहाँ पर शेक्सपियर को देती हूँ, लेटेंट मीनिंग। he was he was attracted to this man and he is dedicating such sort of sonnets to a man to man relationship, latent relationship, ये unconscious relationship, डीएच लॉरेंस के relationship को, for example आप एडगर एलन पो एक राइटर हैं, he lost his mother when he was very young, he just could not come out of that trauma, and that trauma of being near to his mother, of being of clinging to his mother, is repressed and is transgressed through his short stories by। अब मैं लिटरेचर के एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ? लिटरेचर के एग्जाम्पल से ही आप अपनी थियोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट विल नॉट ओनली वैलिडेट इट but it will look like you have analyzed a literary work using a literary theory. So psychoanalytic criticism looks out for two types of meaning in a text. One is the explicit meaning जो दिख रहा है पढ़ने से, shall I compare thee to a summer's day, लेकिन latent meaning शेक्सपियर के अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ड्रीम वर्क के रिप्रेस्ड इमोशंस थे, मैन टू मैन रिलेशनशिप्स थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स थे, तो वो हमें दिखता है लेटेंट आइडियोलॉजी ऑफ थॉट में। तो लेटेंट एंड एक्सप्लिसिट, जब आप लेटेंट एरिया पर वर्क करते हो, ड्रीम वर्क, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इन चीजों को जब आप समझते हो तो वो हो जाता है हमारा साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। You are trying to understand a work of art by understanding the writer first, by understanding the repressed and expressed emotions of a writer। वो कहना चाहता था बट कह रहा है किसी मीन्स से कह रहा है। तो explicit and latent, this latent portion is where the psychoanalytic criticism or psychiatry, psychoanalysis works at this latent फेज। अब जब सब लोग साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म पढ़ाते हैं तो हाउ दे स्टार्ट विद सिगमंड फ्रॉइड और दे स्टार्ट विद जेक्स लकान। हम भी स्टार्ट करेंगे, वहीं पर पहुंचेंगे, बट पहले बता तो लें कि साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है। आपको समझ में आया कि साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म लिटरेचर में कैसे वर्क करता है, लेटेंट लेवल पर करता है। ऑथर की क्या मंशा थी, क्या इच्छा थी, क्या इन्फ्लुएंस था, क्या डिजायर था, क्या नीड थी भाई, जिसकी वजह से डीएच लॉरेंस ने सन्स एंड लवर्स लिखा। क्यों लिखा? वर्जीनिया वुल्फ ने किस चीज से प्रॉम्प्ट होकर ऐसे लिखा अ रूम्स ऑफ वंस ओन? किस चीज से प्रॉम्प्ट होकर उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर बनाई? कहीं रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं हमारे, जिन्हें हम एक्सप्लिसिट लेवल पर लाते हैं लिटरेचर का यूज कर। तो लिटरेरी थियरी है तो लिटरेचर के एग्जाम्पल के बिना तो बात बनने नहीं वाली है।
तो जब भी बात साइको एनालिसिस की आती है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज. फर्स्ट इज सिगमंड फ्रॉइड and second is Jake's Lacan. Please bear with my handwriting. This is not the way I write. I have very beautiful handwriting, but right now I am in a very hush of delivering as much content as I can, so to help my students who are going to sit in the exam just 4 days away, that gives me energy. सो सिगमंड फ्राइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं. उनकी जो मेजर लिटरेरी थियरी है, उनका जो मेन आइडियाज है वो है ड्रीम वर्क का. ड्रीम वर्क. अब लिटरेरी टर्म्स है ये हमारी सिगमंड फ्राइड की. सेकंड है हमारा अनकॉन्शियस का. Even if we are sleeping, even if I am writing here in my unconsciousness, in my subconscious mind. Thank you so much, Manisha. Thank you so much. With your blessings, with your motivation only, I am able to come up to this point each day and teach you people. See, dream work, unconscious, super ego. Super ego. ईगो, इड, ये भी उनका है. रिप्रेशन, वी रिप्रेस आवर इमोशन. रिप्रेशन, sublimation, condensation, all are concepts given by Sigmund फ्रॉइड. सो सिगमंड फ्रॉइड के जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जेक्स लाकान भी साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सिगमंड फ्रॉइड, he worked with a psychiatrist. He literally handled patients. He was psychiatrist himself and he handled patients of psychiatry. He is known as the father of psychoanalysis. He himself attended patients, drew out psychiatric notions from them, and this theory is indeed the result of all those patients, all those cases that he handled. तो उन्हीं से ही ये लिटरेरी टर्म्स आई हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी होता है. हमारा अनकॉन्शियस हैज अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. उसका अपने आप में एक वर्क होता है. So next question, next author that is very much important in this psychoanalytic criticism is Jacques Lacan. very important. Jacques Lacan बहुत ज्यादा important है. Jacques Lacan के 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा. अब हमारे जो राइटर है सिगमंड फ्राइड, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. लेकिन साइकोएनालिटिक थ्योरी को जो स्ट्रक्चर से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया पर लेकर के आने वाले हैं वो है जेक्स लाका. क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं मिरर स्टेज. अब यहाँ पर जेक्स लाका बताते हैं देयर आर 3 स्टेजेस जहां से हमारी कॉन्शियसनेस बनती है. पहला होता है इमेजिनरी स्टेट, दूसरा होता है सिंबॉलिक स्टेट, थर्ड इज द रियल स्टेज. A child, a baby, when it is born, it goes through the 3 stages, and after he goes through the 3 stages he becomes a real human being. So he becomes a human being by crossing 3 stages. First is the imaginary state, जिसको हम mirror stage भी कहते हैं. Ideal eye. देखिए, when a child is born, वो एक imaginary state में होता है, अपनी मदर के लैप में होता है, मदर ही उसको नर्स करती है, उसके पास आइडियल आई नहीं होता है. आइडियल आई का मीनिंग है उसके पास एक सेल्फ की इमेज नहीं होती है. When a mother picks him up,
goes in front of the mirror, he realizes there and then what he realizes. एक चीज मैं स्किप कर गई हूँ, वो चीज क्या है, सिगमंड फ्राइड का ईडिप इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जेक्स लाका की मैं 3 स्टेजेस आप लोगों को समझा रही हूँ। वो 3 स्टेजेस हैं, imaginary, symbolic, and third is the real stage. Imaginary stage is when a child is born, he or she is in a imaginary state. उन्होंने खुद को नहीं देखा है, उनका कोई आई का कॉन्सेप्ट नहीं है, मी का कॉन्सेप्ट नहीं है। So यहाँ पर जब वो mother, when the mother picks him up, takes him in front of the mirror, he gets the idea that this is my mother. She is very tall, very long, very tall in structure, and she is picking me up, and I'm dependent on her. The child looks into the mirror, develops the ideal I. This is me, the shorter one. This is she, the taller one. Whereas इमेजिनरी स्टेट जो होती है वो कॉन्सेप्चुअलाइज कर देती है मिरर स्टेट से आइडियल आई पर। यू गेट द आइडिया ऑफ एन आइडियल आई। वेयर एज सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी सिंबॉलिक स्टेज होती है। अच्छा, पढ़ चुके हैं आप लोग, अब मुझे बताइए हम लोग किस स्टेज पर है एज पर जेक्स लाका। जेक्स लाका पर, जेक्स लाका के अकॉर्डिंगली हम किस स्टेज पर हैं? यू आर जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम योर एग्जाम, जल्दी बताइए। कि हम लोग किस स्टेज पर हैं एट प्रेजेंट? एनीबडी? Okay, let me clear this doubt. We are at the symbolic stage. Symbolic stage is the social stage. जेक्स लाका कहते हैं जो रियल स्टेज होती है वो 2 टाइम्स ही हम अचीव करते हैं, बर्थ पर एंड डेथ पर, बिकॉज बर्थ एंड डेथ आर द 2 ओनली थिंग्स दैट आर इनएविटेबल, दैट आर रियल, दैट होल्ड रियलिटी। वेयर एज symbolic stage is a social stage. The child develops an ideal I, goes to the school, goes near his peers, develops this the concept of ideal I आगे से आगे चलता जाता है। आज हम क्या है, वो हमारा आइडियल आई डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर जेक्स लाका का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कर जाओगे तो मेक श्योर जेक्स लाका और सिगमंड फ्रॉइड को जरूर से जरूर कर जाना। और उसके बाद जो द नेक्स्ट थियरी दैट आई एम गोइंग टू टेक अप is the theory of new historicism. Another very important theory, another very important theory from the exam perspective. ज्यादा कुछ नहीं है इस लिटरेरी थियरी में, बट हमें करनी तो है बिकॉज हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। देखिए, फेमिनिज्म एज अ थियरी बहुत ज्यादा वॉर्न आउट हो चुकी है, उसके बारे में सब लोग इनफ जानते ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक लाइव मैराथन अदर 5 थियरीज के लिए भी किया जाए तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, रिकॉल कराइएगा कि मैम हमें लिटरेरी थियरी के आगे की थियरीज भी पढ़ने हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हमारी लास्ट थियरी रहेगी न्यू हिस्टोरिसिज्म, बिकॉज एक गो में 10 लिटरेरी थियरीज को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म we have completed Marxism, psychoanalytic criticism, we have completed post-structuralism also. So new historicism is all about, as the title of it says, that new historicism क्या होता है? New historicism is basically when you approach history in a new way,
द टाइटल ऑफ इट सेज दैट जब आप हिस्ट्री को एक न्यू वे से अप्रोच करते हैं तो वो न्यू हिस्टोरिसिज्म होता है। एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म के मेजर राइटर्स हैं स्टीफन ग्रीनब्लैट, लुई मॉन्ट्रोज, मेन टू राइटर्स हैं। सो स्टीफन ग्रीनब्लैट ही इसके प्रोपाउंडिंग राइटर हैं जो फॉर्मलिस्ट आइडिया से, स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया से आगे आए हैं एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी लेकर के, जिसमें वो कहते हैं दैट अ टेक्स्ट cannot be understood without placing it to the near core text। एक टेक्स्ट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जब भी हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स एमए तक पढ़ रहे थे, हम पढ़ते थे टेक्स्ट को और कॉन्टेक्स्ट को। हमारा पहला क्वेश्चन ही आता था हिस्ट्री का कि सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताइए उस वक्त का कैसा था। तो यहाँ पर न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो एक लेटेस्ट थियरी है, कल्चरल मटेरियलिज्म का काउंटर पार्ट है, वो क्या कहती है, हिस्ट्री इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट। हिस्ट्री एक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिस्ट्री इज अ कोर टेक्स्ट। कोर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री जितना आपका टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कोर टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। टेक हिस्ट्री एज अ कोर टेक्स्ट। ऑल द फंडामेंटल टेस्टिमोनियल्स के थ्रू स्टडी किसने किया, कौन से लिटरेरी थ्योरिस्ट ने, कौन से कल्चरल स्टडीज के लिटरेरी थ्योरिस्ट ने टेस्टिमोनियल्स पर रिलाई कर कर अपनी बात करी है। जल्दी बताइए, आप पढ़ चुके हैं, डेज बहुत कम है। नेम वन कल्चरल स्टडीज स्कॉलर और थियरिस्ट जिन्होंने पार्ट लिया है, जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स को यूज कर कर वर्किंग क्लास की सिचुएशन को जस्टिफाई किया है। कम ऑन टेल मी। नो, इट इज नॉट रेमंड विलियम्स। टेस्टिमोनी करना, टेस्टिमोनियल्स लिए हैं कोर टेक्स्ट की तरह अपनी बात को समझाने के लिए। सी, मैं बता देती हूँ, ईपी थॉमसन इज द ओनली राइटर जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स को यूज कर कर, कोर्ट के टेस्टिमोनियल आर्टिफैक्ट्स को यूज कर कर अपनी बात को समझाया है कि वर्किंग क्लास कंडीशन क्या है, वर्किंग क्लास कल्चर क्या है, टेस्टिमोनियल्स के थ्रू समझाया है। तो जब आप कोर्ट केसेस, जब आप टेस्टिमोनियल्स, आर्ट ऑफ द टाइम, कल्चर ऑफ द टाइम, हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या शेक्सपियर के ओथेलो में रेसिज्म नजर नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस फॉर दैट मैटर में ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की रिलेशनशिप नहीं समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। क्या शेक्सपियर, क्या क्वीन एलिजाबेथ के वे ऑफ लाइफ से आपको प्री कॉलोनाइजेशन एरा समझ नहीं आता है? बिल्कुल आता है। When you study history as a core text, you will know that how much history is important, and that is why our literary theory is important, that is of new criticism। इसके propounding writers हैं स्टीफन ग्रीनब्लैट। स्टीफन ग्रीनब्लैट की टर्म है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग, कि रेनेसा के टाइम को रीएनालाइज एंड रीइवैल्यूएट किया है और क्या कहा है। Yes, E.P. Thompson's The Making of English Working Class। सो अब यहाँ पर हमारे जो है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग, क्योंकि सेल्फ फैशनिंग रही है रेनेसा की एज। आप फिलिप सिडनी बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे सर फिलिप सिडनी। विलियम शेक्सपियर का वर्क्स को आप ग्रैंड नैरेटिव्स मानेंगे। तो यहाँ पर व्हेन द सेल्फ फैशनिंग इज डन इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, तो वो सेल्फ फैशनिंग होता है। लुई मॉन्ट्रोज का एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट थियरी है, और वो क्या है, दैट हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। यू शुड हैव बोथ। आपको टेक्स्ट की हिस्टोरिसिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हिस्ट्री की टेक्सचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट के साथ साथ भाई लुई मॉन्ट्रोज भी करके जाना। और न्यू हिस्टोरिसिज्म इनकम्प्लीट है विदाउट अलूडिंग टू कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चरल मटेरियलिज्म पावर, मनी, डिस्कोर्स, उससे इंस्पायर होता है, whereas new historicism is all about the historicity of the text and understanding history as a co-text and not a context।
So with that, I come to my way of explaining 5 major literary theories that you are likely to see in the upcoming HPSC Subject Knowledge Test. Is there any doubt? You let me know. Let it be a 5 more minutes discussion, face-to-face discussion, one-on-one. हाँ जी, comment section में बताइए क्या कराएं आपको अगला टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ बताएं कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मेजर टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हैं या कुछ अभी भी रहता है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का रिवीजन जी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैं आपको बता दूं, आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एक बार अच्छे से कर लीजिए, एरिस्टोटल का पोएटिक्स कर लीजिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया के जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन्हें कर लीजिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे क्लासिक्स हैं उसमें से लॉन्जाइनस की तो सिर्फ 5 सोर्सेज ही हैं, उसके अलावा तो कुछ उसमें है नहीं करने को, तो आप उन 5 सोर्सेज की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं. और पोएटिक्स को छोड़ के मत जाना, हमर्शिया, पेरिपेटिशिया, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है, एनागोरिसिस जरूर से जरूर करके जाना. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को भी मत भूलना. पोएट्री सेक्शन में जी, इट्स वेरी लॉन्ग सिलेबस, तो आई नीड टू लुक अपॉन इट वंस मोर कि क्या क्या है, बट एलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट मी ओपन द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोएट्री में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं. आप अगर पीवाई पोएट्री पर ऑलरेडी हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो है वीडियो अवेलेबल है, आप उसे व्यू कीजिए, यू विल गेट मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स आउट ऑफ दैट ओनली. जी हाँ, ये जरूर करके जाइएगा. पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करिए तो एक क्वेश्चन के आने के चांसेस है. सैटर्न के हीरोइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द, एक्सप्लेन हाउ मिल्टन गिव्स हिम अ हीरोइक स्ट्रक्चर, कि हीरोइक स्ट्रक्चर कैसा दिया है. सैटर्न इज द हीरो ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ डोवर बीच भी इंपॉर्टेंट है विक्टोरियन आइडियल्स के लिए. रोमांटिक्स पर एक रोमांटिक पे 1 पेज जरूर बना लीजिएगा अबाउट रोमांटिक पोएट्री ऑल्सो, कि फीचर्स क्या थे और चेंजेस क्या थे, शिफ्ट्स क्या थे रोमांटिसिज्म में भी. कॉलरिज का रोमांटिसिज्म डिफरेंट है, वर्ड्सवर्थ का डिफरेंट है. वर्ड्सवर्थ की कॉमन मैन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिरिकल बैलेंस में जो उन्होंने कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन की लैंग्वेज की बात की है, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच के बिना एसटी कॉलरिज कहाँ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. दोनों ने लिरिकल बैलेंस के ऊपर बनाया है, लेकिन एसटी कॉलरिज की पोएट्री और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री दे आर एंटायरली डिफरेंट. तो ये आपको कंपेयर एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडी भी पूछ सकते हैं. रस्टिक लाइफ, यस. एनी अदर थिंग, any other doubt, or should I end the live stream now? It was very nice talking to you for a good 1 hour 15 minutes. I really enjoyed the conversation. I really enjoyed way teaching. But अगर आपको अच्छा लगा है तो please comment जरूर कीजिएगा once I end this live stream. That motivates me. जल्दी ही दिन आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन को टाइट रखिए. और एक इंफॉर्मेशन और मुझे देनी थी, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अपना सेंटर देख लीजिए, सेंटर पर एक दिन पहले ही चले जाइएगा. जो भी चीज रिक्वायर्ड है, पेन जिस तरीके का रिक्वायर्ड है उसे पहले ही परचेज कर कर रख लीजिए, क्योंकि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, तो वो सेलिब्रेशंस में डोंट ओवरलुक द फैक्ट्स दैट आर रिटन ऑन एडमिट कार्ड. एक दिन पहले ही चले जाना, बहुत अच्छे से पेपर करके आना. वी हैव लिटरली डेवलप्ड अ रिलेशनशिप, हमारे पास यूट्यूब की फैमिली बन चुकी है नहीं, एंड आई एम ग्लैड to have found each one of you. With that, I come to the end of this video, but not to the end of this journey, because साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे. Let it be one of the best fights of our life. No, beta, new historicism and modernism are two different things. New historicism is all about the relationship between history, whereas modernism is another different sort of
सो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा वॉक पर जाइए और अपनी RPR स्ट्रैटेजी को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।